Now let's talk about the types of cells. Well, on the basis of operations or functionality, we have 4 types of functions in MS Excel. These 4 categories are mathematical functions, string functions, statistical functions and logical functions. Whenever we have to perform any kind of normal operation such as addition, multiplication, or let's say you have to calculate average, for this we can use these mathematical functions. When you have to perform any kind of string function, like you want to retrieve some digits from the left side, you want to retrieve some things from the right side, you want to write your text in the upper case or in lower case, for that we can use string functions. अभी हम लोग आगे इन सारे functions को discuss करेंगे कुछ concepts के बाद में. The next is termed as statistical functions. Whenever we have to count values, we have to calculate maximum values, we have to calculate minimum values. All these are termed as statistical functions which can help you to analyze your data. So all the data analysis functions are termed as statistical functions. And then at last we have these logical functions. These logical functions are generally used to apply some kind of condition or logic in your table. And here we only have to learn one function, that is equals to f function. Now let's discuss about the concepts of cell ranges. You might have seen that when we were working with this previous spreadsheet, there we have used so many cell ranges. Now let's see what is a cell range. A group of cells in Excel is known as cell range. Well, it simply means when we select multiple cells at the same time, it is termed as a cell range. Let's suppose it's a very simple spreadsheet table with the columns A and B and rows 1 and 2. Now suppose I have selected all these 4 cells. Fine. Suppose I have selected all these 4 cells, then the range will be termed as A1 colon B2, because here our starting cell is A1 and ending cell is A2. It means I am selecting everything from A1 to B2. मतलब ये सारे के सारे चारों cells वहाँ पे select हो जाएंगे. And it is termed as concept of cell range. Well, rather than selecting a single cell address, you will refer to a cell range using the cell address of the first cell and last cell in the cell range. So what we have to do for using the concept of cell range, we just have to use the address of first cell and then the address of last cell. Both are separated by this colon. क्या करना है हम लोगों को? बहुत सिंपल सा काम करना है. सपोज करो भाई ये एक स्प्रेडशीट है, सपोज करो हम लोगों को ये 4 सेल्स को सिलेक्ट करना था. इसके लिए हम लोग लिखेंगे इक्वल्स टू A1 कोलन B2. मतलब क्या हुआ, इस रेंज का फर्स्ट सेल, इस रेंज का लास्ट सेल, दोनों का एड्रेस सेपरेटेड बाय दिस कोलन. जैसे ही आपने लिखा ये बन जाएगा कंसेप्ट ऑफ सेल रेंज, और ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इन सारे सेल्स को सिलेक्ट कर देगा. अभी जो सेल रेंज है ये अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें जनरली हम लोग को 3 कैटेगरीज डिस्कस करनी है. दैट इज वर्टिकल सेल रेंज, horizontal cell range and then mixed cell range. Our first category is termed as vertical cell range. Well, when in MS Excel we select our cells vertically, then it's termed as vertical cell range. It means a vertical selection in a column of cells is termed as vertical cell range. Suppose in this column B we have some numbers like 12, 13, 20, 21 and 19. And now suppose you want to calculate the sum of all these digits in this particular cell, then for that you can write equals to sum B1 colon B5. When you will do so, it will calculate the sum of all these 5 numbers and that value will be displayed in this cell, that is cell B6. This concept where we are selecting all these cells vertically in a column is termed as vertical cell range. Then our next concept is horizontal cell range. Horizontal cell range or horizontal selections of cells in a row is termed as horizontal cell range. Suppose we have some values in this particular row number 4. Suppose the values are 10, 30, 19, and we have to calculate average of these 3 values. Then for that, suppose we have to calculate average in this cell, then in this cell we will write equals to average A4 colon C4. So when you will do so, it will select all these 3 cells automatically and you will get the average instantly.
देन आर नेक्स्ट कंसेप्ट इज मिक्स्ड सेल रेंज. मिक्स सेल रेंज का मतलब क्या होता है, जब हम लोगों को रो और कॉलम दोनों में सिलेक्शन करना है. मतलब क्या हुआ भाई, इस पूरे के पूरे रेंज में बहुत सारी वैल्यूज थी, सबको ऐड करना है या सब में से मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है. तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं भाई, इस केस में हम लोग यूज़ करते हैं एक वर्टिकल सेल रेंज और एक हॉरिजॉन्टल सेल रेंज का मिक्सचर, दैट इज टर्म्ड एज मिक्स सेल रेंज. इसके लिए भी बच्चों काम बिल्कुल सिंपल है. ये हम लोगों का इनिशियल सेल, ये है हम लोगों का फाइनल सेल. तुम्हें क्या करना है, अपने एम एस एक्सेल में इनिशियल सेल दैट इज A2, फिर कोलन लगाना और फाइनल सेल दैट इज C5. इसका एड्रेस पास करना है एंड ऑटोमेटिकली इट विल शो यू द सिलेक्टेड रेंज. फाइन. Selection of cells that form a rectangular structure including rows and columns is mixed cell range. For example, in this case our cell range is A2 colon A5. This is a collection of cells that can be formed multiple rows and multiple columns. Now what you all need to do, you have to note down these concepts of cell ranges. ये पूरा का पूरा नोट करना है आपको, नोटबुक वर्क है तुम्हारा ये. आई थिंक मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया था, तुम लोगों को नोट करना है ये. देन यू हैव टू नोट डाउन दिस थिंग इंक्लूडिंग दिस इमेज. ये इमेज नोट करनी है. यू हैव टू नोट डाउन दिस थिंग इंक्लूडिंग द इमेज. यू हैव टू नोट डाउन दिस थिंग इंक्लूडिंग द इमेज. And now we have to do some practicals. So what I will do, I will use a special shortcut key combination which I have told you so many times. You have to press this वाली की, जो कि कुछ ऐसी दिखने में होती है या फिर कुछ कंप्यूटर्स में ऐसे दिखने में होती है. फाइन. एंड दिस की इज टर्म्ड एज विंडो की. तो विंडो की के साथ R दबाओगे, इट विल ओपन रन प्रॉम्प्ट. रन प्रॉम्प्ट में यू हैव टू टाइप एक्सेल एंड देन यू हैव टू प्रेस एंटर की. याद रखो बच्चों, ये जो सिंबल मैंने ड्रॉ करा है ना, ये कुछ इस तरह वाला, ये एंटर की का सिंबल होता है. तुम लोगों को तुम्हारे कीबोर्ड में दिख भी सकता है. और अगर तुम्हारे पास पीसी नहीं है, तुम्हारे पास अगर कंप्यूटर नहीं है, देन यू कैन डू वन मोर थिंग. व्हाट यू कैन डू इज गो टू गूगल प्ले स्टोर एंड सर्च फॉर MS Excel. Fine. You will find the app of Microsoft MS Excel. What you have to do, you have to download that app. Fine. You have to open that app and then you have to click on new spreadsheet option directly. Fine. So I'm using my computer. I'm pressing Windows and R and let's see what will happen. Now as you all are able to see, I got this run prompt in my display. In this run prompt we have to write Excel over this side now. So I'm writing EXCEL. And then you have to press the enter key. As you all can see now, I got this spreadsheet window in my display, and then here I have to click on this blank workbook option. थोड़ा सा zoom कर लेते हैं इसको. Now suppose in this workbook we have to perform some kind of calculations. तो पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डेटा को एंटर करेंगे, फिर उस पर वर्क करेंगे. चलो, एक तुम लोग मुझसे बहुत से लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि लाइक हाउ वी कैन कैलकुलेट एवरेज और परसेंटेज. तो मुझसे बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था कि हम लोग परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो आज हम लोग बड़ा सिंपल सा काम करने वाले हैं. हम लोग एक रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर करने वाले हैं. हम लोग एक रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे जिसमें मैं बच्चों के मार्क्स का सम, एवरेज, परसेंटेज, उसके बाद मिनिमम मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स जैसी इन सारी चीज़ों को यूज़ करूँगा. लेट्स स्टार्ट. सपोज इन दिस कॉलम वी हैव टू मेंशन नेम्स. So I'm writing name. Then let's say our next is science marks. Then let's suppose our next is maths marks. Let's suppose our next is SST marks. And then next is computer marks. Then our next is English marks. Then our next is Hindi marks. Then let's suppose after that we have to calculate here sum. So I'm writing total. Then next is average. So I'm writing average.
and then AVERAGE. Then next is our percentage. So I'm writing percentage. थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं. Fine. Now let's suppose we have to fill some entries. थोड़ा सा beautify करते हैं. So what I'll do, I'll put a background color over this. I'm giving it a yellow color or blue color. I'm giving it a yellow color right now. Suppose our text is in red color. Fine. And then suppose we have some borders also over the side. So I'm selecting 5 rows, excepting the header one. Then I have applied the borders also. करना क्या है जरा देखो यहाँ बच्चों, कलर चेंज करना है, सो यू हैव टू यूज दीज 2 ऑप्शंस. बॉर्डर चेंज करना है, यू हैव टू यूज दिस ऑप्शन. यू कैन एक्सप्लोर दीज ऑप्शंस इन द मोबाइल ऐप आल्सो, बट वहाँ पर थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को ढूंढना पड़ेगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी इन द व्हाट्सएप. सो व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, आई एम राइटिंग सम नेम्स. सपोज आवर फर्स्ट चाइल्ड इज अभय. फाइन. सेकेंड इज लेट्स से Rajiv. Then let's say next child is Raman. Then next is let's say Kiran. And then let's say our last student is Amy. So these are our 5 students. Now let's suppose we have to give them the marks. So I'm randomly writing some marks. You can also try any kind of random sheet. Let's suppose they got very good marks in computers. Some of them are mediocre also. Then English, Hindi, that's it. Now after this we have to calculate total. So what I will do for that calculation of total, I will write something in this cell. I will write equals to sum, and then because we are performing a calculation we have to add the marks of अभय. तो जो अभय के मार्क्स हैं बच्चों वो सारे के सारे लिखे हुए हैं हमारे रो नंबर 2 में. फाइन. ये सारे के सारे जो मार्क्स लिखे हुए हैं ये लिखे हुए हैं रो नंबर 2 में. इट मीन्स हम लोग को रो नंबर 2 के कुछ सेल्स को सेलेक्ट करना है. कौन कौन से सेल्स को सेलेक्ट करना है चलो उस पर फोकस करते हैं. ये है स्टार्टिंग सेल, ये है एंडिंग सेल. अभी जो स्टार्टिंग सेल है इसका नाम है B2 और ये जो एंडिंग सेल है इसका नाम है G2. इट मीन्स जो हमारी यहाँ पर रेंज बनेगी वो बनेगी B2:G2. ये किसके लिए है, ये अभय के मार्क्स की सेल रेंज है. चलो एक काम करते हैं, फंक्शन में अप्लाई करके चेक करते हैं कि क्या हम लोगों को सही आउटपुट मिल रहा है. सो वी हैव टू राइट इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट में मैंने लिखा B2. देखो जैसे मैंने B2 लिखा है तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा फर्स्ट वाला सेल हाईलाइट हो गया, कोलन G2. और देखो जैसे ही मैंने G2 लिखा तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरा फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक का G2 तक का के सारे जो सेल्स थे वो क्या हो गए, यहाँ पे हाईलाइट हो गए. एंड देन आई हैव टू प्रेस एंटर की सिंपली. दैट्स इट, आई गॉट माई सम. नाउ व्हाट आई विल डू फॉर दिस नेक्स्ट वन, हम लोग क्या करेंगे, सेल को सिलेक्ट करेंगे, देन अपने फिल हैंडल पे क्लिक करेंगे और उसको ड्रैग करेंगे नीचे तक का. फाइन. चलो मैं तुम लोगों को करके दिखाता हूं कैसे करना है. मैंने सेल को सिलेक्ट करा, अपने जूम कर लेता हूं थोड़ा सा इसको. देखो मैंने सेल को सिलेक्ट करा, ये फिल हैंडल है यहाँ पे.
फाइन, कि तुम लोगों को छोटा सा रेक्टेंगल दिख रहा होगा, उस पर आए तो देखो कर्सर हमारा चेंज हो गया। देखो पहले कर्सर ऐसे मोटा मोटा आ रहा था, जैसे ही क्लिक करा तो कर्सर बिल्कुल प्लस साइन जैसे आने लग गया, बिल्कुल पतला सा। फाइन, जस्ट नोटिस दिस वन थिंग, क्या करना है, कर्सर पर क्लिक करना है और ऐसे धीरे धीरे एक एक सेल इसको नीचे से उतारते हो एंड देन लीव इट। देखो अपने आप से पूरा का पूरा सम कैलकुलेट हो गया। फाइन, नाउ सपोज यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज इन द सेम मैनर, सो वी विल राइट इक्वल्स टू एवरेज similar cell range, that is A2 colon G2, enter, and that's it, you got your average also. That is very low in this case. Now suppose in this particular list I want to find the child who got the maximum marks. मुझे देखना है कि भाई कौन से बच्चे के टोटल जो है वो क्लास में मैक्सिमम है। तो भाई उसके लिए क्या करना है, मुझे मैक्सिमम अप्लाई करना है, मुझे मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं इस वाले कॉलम से। हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कॉलम H का। कॉलम H में हम लोगों के टोटल मार्क्स हैं और सपोज करो हम लोगों को यहाँ से हाईएस्ट टोटल को फाइंड आउट करना है। फाइन, सो फॉर दैट व्हाट वी कैन यूज़ मैक्स फंक्शन फर्स्ट थिंग। और जब हम लोग मैक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे तो मैक्स फंक्शन की सेल रेंज यहाँ पर क्या होगी, मैक्स फंक्शन की जो सेल रेंज होगी भाई वो बनेगी इनिशियल सेल कोलन फाइनल सेल। इनिशियल सेल है हमारा H2, फाइनल सेल है हमारा H6, सो वी विल राइट H2 कोलन H6। अब चलो लिखते हैं और चेक करते हैं भाई। तो मैंने यहां पर लिखा है इक्वल्स टू H2 कोलन सॉरी इक्वल्स टू मैक्स H2 कोलन H6 ब्रैकेट। अब ये जो हम लोग यहां पर कंसेप्ट पढ़ रहे हैं या कंसेप्ट देख रहे हैं, इट इज टर्म्ड एज वर्टिकल सेल रेंज। इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल सेल रेंज। फाइन, सो व्हाट वी विल डू आफ्टर दिस, आफ्टर डूइंग दिस मच वी हैव टू प्रेस सिंपल एंटर की। तो देखो जैसे ही मैंने एंटर की करी प्रेस, तो मेरे सामने मैक्सिमम जो टोटल था वो आ गया, जो कि आया है ME का, दैट इज 378 मार्क्स। नाउ सपोज वी हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज। वेल कुछ बच्चे मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि सर हम लोग परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो भाई देखो मैंने यहाँ पे शेयर करा है कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है। स्टेप्स आर वेरी सिंपल। इन जनरल इन मैथमेटिक्स आर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग परसेंटेज इज दिस। आई एम राइटिंग द फॉर्मूला हियर। वी राइट टोटल सॉरी वी राइट सम अपॉन टोटल मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100। जब भी हम लोगों को मार्क्स का परसेंटेज निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपली लिखते हैं सम इंटू 100 अपॉन टोटल मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, अब ये जो कंडीशन है जो हमारे पास टेबल है भाई, इसमें टोटल है 6 सब्जेक्ट्स, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे जो हम लोग का फॉर्मूला बनेगा भाई वो कुछ ऐसा बनेगा, वो बनेगा इक्वल्स टू जो हमारा सम है वो स्टोर है टोटल वाली फील्ड में, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। इट विल बी इक्वल्स टू टोटल अपॉन 600 इंटू 100। बट कंप्यूटर में हम लोग ये वाला फॉर्मेट यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए देखो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे इक्वल्स टू टोटल डिवाइडेड बाय 600 होल मल्टीप्लाइड बाय 100। जरा थोड़ा सा कॉमन सेंस मुझे यूज़ करके बताओ बच्चों, जिस केस में तुम्हारे मार्क्स 100 में से हैं, क्या वहाँ पर ये 0 0 आपस में कैंसिल नहीं हो जाएंगे? और अगर ये 0 0 आपस में कैंसिल हो गए तो क्या ये तुम्हारा टोटल अपॉन 6 नहीं बचा? तो ये जो क्या टोटल अपॉन 6 बचा है, क्या यही एवरेज का फॉर्मूला नहीं है? तो एक चीज़ याद रखना, जब भी तुमको मार्क्स का परसेंटेज कैलकुलेट करना है और जो मार्क्स दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं आउट ऑफ 100, उस केस में आप वहाँ पर डायरेक्टली एवरेज वाले फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। आपका परसेंटेज और एवरेज हमेशा सेम आएगा। यानी ये जो क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं, इस क्वेश्चन के केस में एवरेज और परसेंटेज बिल्कुल सेम आएगा। चलो कैलकुलेट करके चेक करते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू, जो भाई अभय का टोटल है वो स्टोर है H2 में, तो हम लोगों ने लिखा इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे, लिखेंगे H2 डिवाइडेड बाय 600 क्लोजिंग ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय 100। समझ लो क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं। हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं परसेंटेज निकालने के लिए इक्वल्स टू H2 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाइड बाय 100। H2 क्या है भाई, H2 अभय के जो टोटल मार्क्स हैं वो H2 वाले सेल में स्टोर हैं यहाँ पे।
600 क्या है, हम लोगों के टोटल मैक्सिमम मार्क्स, और इनटू 100 फॉर्मूला में करना पड़ता है। जैसे इतना करके एंटर की प्रेस करते हैं, चलो देखो भाई क्या होता है। देखो जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस करी, आई गॉट द सेम वैल्यू विच आई गॉट इन द एवरेज। अब क्या करेंगे, इसको सिंपली सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग करेंगे, ड्रॉप कर देंगे, दैट्स इट। देखो सेम वैल्यूज आ गई जो पीछे हमारे पास वैल्यूज सॉल्व होकर के आई थी। फाइन, सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड व्हेनेवर यू आर कैलकुलेटिंग percentage out of 100, in that case your average and percentage both will be similar. Now let's suppose मुझे भाई इन बच्चों के टोटल का 10% कैलकुलेट करना था। एक यहाँ पे पॉइंट ऐड कर रहा हूँ भाई, सपोज करो मुझे टोटल का 10% कैलकुलेट करना है। चलो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर मैं एक नया कॉलम बना रहा हूँ और मैं इसमें लिख रहा हूँ 10% ऑफ टोटल। अब देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मुझे ये देख के बताओ कि जो टोटल है बच्चे वो स्टोर कहाँ पर है। आई थिंक सबको दिख रहा होगा जो हमारा टोटल है वो स्टोर है इस वाले में। टोटल जो है वो हमारा स्टोर है H में। अब ये H2 का 10% कैसे निकालेंगे। 10% निकालने का तरीका बड़ा सिंपल सा है मैथ्स में। हम लोग क्या करेंगे, H2 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, डिवाइड करेंगे 100 से, और इसको हम लोग कहते हैं 10%। तो सेम काम यहाँ पे करेंगे। फॉर्मूला लिखते टाइम वी विल राइट इक्वल्स टू H2 into 10 upon 100. That's it. You have to press the enter key, and here we got the 10% value of this cell, the sums. Then you have to simply drop it down. That's it. And here we got our 10% values. Fine. So in the same value, in the same method, we can apply so many things in our table. You can note down this table if in case you wanted to. Just take a screenshot of this, and then you have to practice these all things by your own also. For this, you can either use a mobile phone or your computer. This will work similarly in both the devices. Thank you all.